तो गाइस नमस्ते। आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। What if I told हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एनलाइटेंड बीइंग। पता नहीं क्यों हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और क्या करेंगे रिकॉग्नाइज करके हम एनलाइटेंड बीइंग को। मतलब क्या फुकड़ी खेलेंगे उनके साथ में। जो भी हम करेंगे दोस्तों, जो भी अच्छी बात है, ये वीडियो अच्छी लग रही है मेरे को। हाउ टू रिकॉग्नाइज मतलब एक एनलाइटेंड आदमी जो है, जो मतलब दुनिया से मुक्त हो गया है, जो अपने दिमाग में बहुत कुछ इतना आगे पहुंच गया है कि भगवान के लेवल पे पहुंच गया है, उस आदमी को कैसे खोजे। बहुत कम लोग होते दोस्तों ऐसे, बुद्ध थे एक ज़माने में। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। ये ऐड आ गई इस कुतिया औरत की, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये भी देखेंगे। you that the root cause of procrastination is not fear of failure, but ए प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बताती है, खुद ही प्रोक्रेस्टिनेट करती है पूरे दिन भर। लेट स्टार्ट। Enlightenment is known as the crux and the epitome of spiritual अरे ये तो अंग्रेज निकली। अरे कोई बात नहीं, पालो पालो। awakening. For some people, they have put it so high on a pedestal that they'll never be able to reach it, let alone embody it. So today I'm going to be talking all about what enlightenment truly is. And at the end of this video, I will tell you the number one symptom of enlightenment that you probably may have never guessed. The reason why हे औरत, तू हमें बताएगी एनलाइटनमेंट क्या होता है, लेकिन तू खुद एनलाइटन लगती नहीं है मुझे। चोर लगती है, चोर, चिंदी चोर, अमेरिका की चिंदी चोर। enlightenment has been portrayed as completely unattainable is because it's been translated through the perception of old spiritual paradigms. So we've been going off of what enlightenment is from a very one-dimensional बात करती है एनलाइटनमेंट की, और देखो एनलाइटनमेंट वाले तो सब कुछ छोड़ देते हैं। और इसको देखो, गले में क्या पहना है इसने, 20 रुपए का डायमंड। कहाँ से चुरा के लाई ये नौटी लड़की। और ये काले कपड़े क्यों पहने हैं तूने। depiction of a multidimensional state of इसकी mind. शक्ल मर्द जैसी है ना, ऐसे लगता है कि वो नहीं है, वो बियर ग्रिल्स, उसको पीट चुकी है जंगल में, ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं। And what I mean by that specifically is the fact that we've pulled bits and pieces of what we feel enlightenment is based off of a depiction of only a one-dimensional portrayal of enlightened individuals or prophets or some sort of spiritual guru that we have placed in a figure that we cannot attain. वीडियो में एनिमेशन भी डाली है। तो दोस्तों ये बेसिकली हमें बताने की कोशिश कर रही है कि जो एनलाइटनमेंट होता है, जो दुनिया के संसार से मुक्ति और मतलब हर चीज़ से मुक्ति, जो रियल मुक्ति है लाइफ की, उसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। वो बोलते हैं कि लोग इसको अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग सिर्फ उसको वन डायमेंशनल मतलब गहराई से नहीं देखते। बहुत समझ रहे हो आप, समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, समझो यार आप। So we've set ourselves up to not feel like we could ever be in an enlightened state, no matter how much we revere it. ये जंगल में, रेगिस्तान में कहाँ जा रही है ये लाल परी। इधर पानी नहीं मिलेगा, चल भाग जा यहाँ से। No matter how much we try to attain it along a spiritual path. So do you see the position we've put ourselves in? We've put us on this perpetual cycle of wanting something that we can never actually attain or embody. But the destiny of the spirit of this age is enlightenment, and not just for a select few. For the awakening masses, the state is enlightenment, meaning that we are all going to eventually need to come to terms with our own divinity, whether we like it or not. How the state वो बोलती है कि हर एक इंसान का जो अल्टीमेट मकसद है ज़िंदगी में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जन्म में हमको एक ही मकसद है हमारा सबका, वो है एनलाइटनमेंट, वो है मुक्ति। तो दोस्तों ये बात तो सही बोल रही है, इस बात में सेंस है, इसलिए मैं इस बात में इसका कुछ नहीं कहूँगा। तो लेट्स dive further into the video. State of enlightenment has been portrayed in the past as divinity at the expense of our humanity. So it's all divine, no human. All good, human bad. And those teachings served us because we're still getting more of the story. We're still growing and we're still evolving, and therefore we're able to दोस्तों ये जंगलों में रहती है शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत मेडिटेशन की डीप डीप बातें कर रही है। शायद इधर ही तपस्या करती है पेड़ के नीचे और फिर यहीं आके वीडियो बना देती है। लेकिन ये वीडियो क्यों बना रही है तू? अपनी तपस्या में ध्यान दे, पहले एनलाइटनमेंट हो जा, कर ले खुद। and align with more truth. So the old spiritual paradigm had truth within that story contained. However, now we're adding to it. And so since we're adding to it, enlightenment is going to shift in what we regard as that state. So if we viewed enlightenment in the past as being a discombobulated state, meaning spirit at the expense of body, spirit or mind at the expense of the emotional body and our humanity and our other dimensions that we contain within our being, then what that's going to look like for the new spiritual age is
a coming into equilibrium. Once this equilibrium is attained within the being, what you have is the birthing in the frontal lobe and in the neocortex. What this births is conscious. Conscious is spiritual sovereignty. So enlightenment and equilibrium and spiritual sovereignty can all be viewed from different perceptions as the same thing. The reason why conscious is so important within an individual is because that's when there's no external force that needs to guide or rule it, because they are so in alignment with universal consciousness. They are completely operating. तो ये दोस्तों अवेयरनेस के बारे में बात कर रही है, कॉन्शियसनेस के बारे में, जैसे कि हम जो ह्यूमन है उसकी सबसे ज़्यादा नेचर, अभी हम लोग क्या है, हम लोग को हमारा दिमाग कंट्रोल में ला रहा है ना, पूरी तरीके से हमारा दिमाग हमें कंट्रोल करता है, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं बिना हमारे कंट्रोल के। तो वो बोलते हैं कि इस जीवन का मकसद यही है कि इनसे मुक्त होना, इस दिमाग से मुक्त होना, और जो है जैसा है वैसा उसे देखना, और वही उसका मकसद है। तो वो कैसे अचीव करना है एनलाइटनमेंट, ये हमें बताएगी। तो देखते हैं आगे वीडियो में और क्या मतलब बातें बताती है ये। From the state of consciousness known as Dharma. If you'd like to know more about Dharma, let me know in the comments. And बुद्धा ऑलरेडी बता चुके हैं धार्मा के बारे में, तू नहीं बताएगी तो ही अच्छा रहेगा। make a video explaining everything about Dharma in depth. The number one prerequisite for enlightenment is embodying and operating from the state of oneness. In fact, enlightenment can also be known as oneness. And this isn't just a fleeting type of oneness that you experience in one of those. एनलाइटमेंट मतलब बोल रही है एकता, मतलब यूनिवर्स जो है उसके साथ में मिलकर उसके सिंक्रोनाइज पैटर्न में सोचना या चलना, जीवन का वितरण करना, ना कि मतलब दिमाग बोल रहा है यहाँ चलो तो वहाँ भटक गए, यहाँ बोले तो वहाँ भटक गए। तो थोड़ी गहरी बात है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको समझा ही दूंगा, क्योंकि बहुत टैलेंट है मेरे में सब चीज़ों के अंदर। Peak experiences that are so available to us in the spirit of this age. This is the walking. Want to build your own version of अरे ChatGPT? नहीं बिल्ड करना Join us भैया, for हम this एनलाइटमेंट की amazing बातें कर रहे हैं। opportunity. दड़ियल कहाँ से आ गया बीच में? लॉर्डिंग क्यों हो रही है? अरे वाईफाई तो चालू है। Breathing, living reality of oneness. It doesn't go away. It's not something that strikes you and then leaves you. If it strikes you, if it penetrates you to the core, it stays with you, and you now operate from this level of being. Even if it's from a very discombobulated state at first, even if it takes time to fully integrate that state, you are now within that new realm, operating from oneness. This is also called samadhi, but I would actually define the difference between samadhi and oneness as being this: samadhi is a peak experience that is always attained, whereas oneness is not a peak experience that's always attained. Oneness is more of just an everyday walking, breathing reality where you understand that you are the avatar, and you understand that you have an ego and you're not at all at odds with it, but yet at the same time you understand all of this coming from the sense of you are an aperture of the heart of the universal one. So you understand there's more than one aperture, and that you are connected to it all, and you are operating as an avatar, as an ambassador of the all in your avatar. And so there's a defining difference between those states. But like I said, oneness isn't something that is fleeting. It's not something that goes away. If you experience it to the point where it's penetrated you, then you're actually operating now within that realm. And what's going to actually happen is you just have layer after layer, or awakening after awakening, revealed to you deeper. So it acts more as an unfoldment. Now, oneness is kind of hard to explain, even though it sounds simple, because what oneness means to a person who is not operating अभी from. सिर्फ ये बताया है कि चीज़ें कैसे होती है, क्या एनलाइटनमेंट होती है, किस तरीके से हम जो अपना अल्टीमेट गोल है लाइफ में, जो कि एनलाइटनमेंट है, जो कि है मुक्ति, संसार, हर संसार की डिज़ायर से मुक्ति, उसी के बारे में बात कर रही है। कैसे हम लोग बोल रही है हाईएस्ट फॉर्म जो होता है उस चीज़ का, मुक्ति का, वो है समाधि। समाधि मतलब आप सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं और पूरी तरीके से अपने मन की तरफ, मतलब अपने मन को आप खो देते हैं अपने मन को। आपका मन नहीं होता उस समय आप खुद मतलब कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को। आपको हर छोटी छोटी चीज़ मालूम पड़ती है, जैसे कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है, आपकी उस चीज़ पे ध्यान रहेगी, ना कि इस चीज़ पे कि अरे यार आज तो यार दिन नहीं लग रहा है, यार आज तो मज़ा नहीं आ रहा। ये सब बकचोद चीज़ें कैंसल लाइफ से, सिर्फ और सिर्फ जो है वही। तो वो हाईएस्ट फॉर्म है समाधि, जिसमें आप सब कुछ त्याग, आपकी कोई डिज़ायर नहीं होगी लाइफ में उस टाइम पे। आप सिर्फ जियोगे प्रेजेंट में, जो है जैसा है देखा जाए। आप सोचोगे नहीं कि मैं कल क्या करूँगा या फिर कल क्या हो गया, आप सिर्फ जो है वैसा जिएंगे उस
समाधि के बारे में। तो ये बंदी जो है अभी तक तो यही बता रही है सब क्या होता है, लेकिन इसने अभी तक भी ये नहीं बताया कि हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एनलाइटेंड बीइंग, कैसे एक एनलाइटेंड बंदे को हम पता करें कि वो है। अगर ये बात उसने लास्ट तक नहीं बताई दोस्तों, तो हो सकता है कि मैं इस बंदी के साथ कुछ गाली गलौज कर सकता हूँ लास्ट में। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपको गाली गलौज पसंद नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। that state of enlightenment yet is going to be different from somebody who begins to enter and operate from that state of oneness. Oneness before enlightenment is kind of like a strong empathy. There's nothing wrong with it, but there's just this really like दोस्तों इसने एक दो चीज़ों के बारे में बात की, समाधि और वननेस। तो वननेस जो है वो समाधि से पहले की जो स्टेट है, जिसमें हम लोग सिर्फ निरीक्षण करते हैं अपने दिमाग के थॉट्स का। हम समझते हैं कि हम जो है, हम में ईगो है, हम सब जानते हैं अपने आप को कि हम में गुस्सा है, ये कहाँ से आता है, हम सब चीज़ों को जानते हैं, हम सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, हम सब चीज़ों को देखते हैं कि हाँ यार मैं तो गुस्सा भी करता हूँ, मेरे में ईगो भी है। तो ये सिर्फ ये जानना, ये जान होना, सूझबूझ होना कि यार मेरा तो दिमाग ही मुझे चला रहा है, कि मतलब इन सब चीज़ों की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। बहुत सारे लोग को तो लगता है कि उन्हें मतलब वो फ्री है, वो दिमाग के चंगुल से, उनको पता ही नहीं है कि साला उनको दिमाग कंट्रोल करा चलाया जा रहा है, सालों से साल हो गए, बूढ़े हो गए, मरने वाले, फिर भी दिमाग चला रहा है, फिर भी उनको लास्ट तक समझ ही नहीं आता। तो इस चीज़ की समझ वो है वननेस इनके हिसाब से, ये काले कपड़े वाली मेम साहब के हिसाब से। strong empathy is the best word I could use for it, because what we're doing is essentially going like, yeah, we are all one. Yeah, we understand we're all one, but we only understand it from a very human concept and breadth and width. Whereas in oneness, you understand the utter reality of it from all of the lengths and the depths of what that even entails. It's the difference between understanding a concept and being the living reality of that concept. And because of that, enlightenment takes some time to get used to operating from this state of being, because it can even be experienced as traumatizing. And it is traumatizing to the ego when we first step into this state. Because if you think about it, if there were ever an ego death, enlightenment is the ultimate ego death. The funniest part about this is you have a lot of really just high बोल रही है एनलाइटनमेंट बहुत मुश्किल होती है। एनलाइटनमेंट जो आदमी जो जिस उस वैसा बन पाता है, बनने के लिए, एनलाइटनमेंट मोड में जाने के लिए उसे बहुत सारी मतलब कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसको ईगो को मारना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे टफेस्ट जॉब है वो बोल रही है, ईगो को मारना। मतलब बहुत सारे लोग तो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं इस चीज़ में, ऐसे भी वो बोल रही है एनलाइटनमेंट के जो प्रोसेस में, क्योंकि ईगो को मारना एक तरीके से ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है। तो देखिए, अगर आप ईगो को मारना चाहते हैं तो बने रहे, बताते हैं कैसे मारना है। consciousness individuals right now going through spiritual awakenings, not having a great context for it, freaking out because they're like, I don't feel reality as the same, and really they're starting to experience the beginning symptoms and stages of enlightenment. And yet they're interpreting it through the aperture of depression, of being blocked, of stuckness, and all of those are very बहुत valid. सारे लोग जो एनलाइटनमेंट की जर्नी चालू भी करते हैं ना दोस्तों, तो वो डर जाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी अलग होती है ना। उनकी जो एनलाइटनमेंट की जो रियलिटी है वो हमारी रियलिटी से बहुत अलग है, क्योंकि हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जो हमारा दिमाग बना के हमें दे रहा है कि हाँ, हमारा पूरा दिन भी प्लान रहता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा, समझ रहे हो। लेकिन एनलाइटनमेंट की जो लाइफ है एनलाइटनमेंट की, वो बहुत टोटली डिफरेंट है। तो इसमें घुसते हैं जब हम, तो ऑब्वियसली आपको दिमाग नहीं चाहता ये चीज़, आपके मन को बरसों से आदत है आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड बना के देने की। अब उसकी आदत तोड़ना, इतनी स्ट्रांग आदत तोड़ना इस दिमाग की, जो चाहता है कि तुम हमेशा इसके इशारों पर नाचते रहो। ये बोले कुछ बकचोदी करो, फिल्म देख लो तो फिल्म देख ली, ये बोले कि सो गए तो सो गए, मतलब यही तुम्हें मतलब नचवा रहा है, समझो इस बात को। तो एनलाइटनमेंट जो है इस चीज़ से फ्री होने का एकमात्र मार्ग है, जो कि मैं खुद भी दोस्तों काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके मैं एनलाइटेंड हो जाऊँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन सुन लेते इसको और क्या बोल रही है। Real things, but they're a part of a larger process. And so the most beautiful thing about enlightenment that many people are going through right now is that they can't even see their own beauty, and they don't even have a proper mirror for just how conscious of an individual they are and how responsible of a being they are to even be able to start attaining and embodying these states of consciousness. The process of enlightenment is known as alchemy, which is why in alchemy, the final stage is gold, from lead to gold. And that gold, what it really means is, बोल रही है एनलाइटनमेंट
का मतलब होता है एल्केमी। एल्केमी मतलब एक प्रोसेस दोस्तों, जिससे जो लीड होता है, एक मेटल होता है लीड, जिससे गोल्ड बनता है। समझ रहे हो? मतलब एक प्यूरिफिकेशन, इंसान का एक प्यूरिफिकेशन होता है एनलाइटनमेंट, कि हम अभी कचरा है और कचरे से हम बनेंगे सोना। ऐसा एक तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। अरे ये माइक का माँ का जय हो। तो दोस्तों आप समझ रहे हो ना, बने रहो साथ में, बढ़िया चीज़ें बता रहे थे लोग। Enlightenment. The light from enlightenment is the light of gold, golden light. And how we are transmuted into gold is through a refinement process, a cyclical process of division and unity that eventually purifies us into the distilled state of enlightenment. एनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें जैसे कि उसने बताया कि जो एल्केमी जो प्रोसेस है, जिसमें उसमें लीड जो मेटल होता है उसको प्यूरिफाई करते 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 वो गोल्ड बन जाता है। उसी तरीके से हमारा जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है, उसमें भी एक इंसान जो होता है उसका भी प्यूरिफिकेशन होता है दोस्तों। काफ़ी स्टेजेस आती है और वो धीरे 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 उस स्टेज की तरफ बढ़ता रहता है, जो कि है अल्टीमेट स्टेट ऑफ लाइफ, जहाँ पे आदमी हर चीज़ से फ्री हो जाता है। उसके बाद वो कुछ नहीं रहता, ना आदमी ना औरत, वो सिर्फ एक बीइंग हो जाता है। पता नहीं वो क्या हो जाता है, लेकिन जो भी है वही एनलाइटनमेंट है। इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार में सुनेंगे अभी इस औरत से। But really, as I said, what enlightenment is the unification and the integration of the mind-body-spirit complex. So if the old spiritual paradigm was only holding space for one-dimensional depiction of what enlightenment was, and if that depiction was one where it was at the expense of humanity, only to favor divinity, then what enlightenment truly would look like now in this spirit of the age would be the reclaiming of all of the different multidimensional aspects within us, the integration of those aspects, the harmony within them, and then the equilibrium between the hemispheres. And what that's going to look like is the opposite of repression. And so we had a very repressed version of what enlightenment was. And so because of that, we ourselves are trying to repress ourselves in order to get into some sort of image or depiction of what enlightenment would look like, when in actuality, the unraveling and the unwinding of that self-image is what enlightenment truly is going to start taking on as our new reference point. And this new reference point is going to allow into our being more of our true higher self. I mean, people have such a repressed version of enlightenment right now that they think you're not even allowed to experience human emotions within that state. And that's just not true. Enlightenment is kind of like the next launching point off from once you've accepted and embodied and started operating from that. So it's a big deal. वो बोल रही कि बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि एनलाइटनमेंट मतलब आदमी आदमी ही नहीं रहेगा, आदमी आदमी का इमोशन भी फील नहीं कर सकता। तो दोस्तों वो बोल रही कि ऐसा नहीं है। एनलाइटनमेंट मतलब ऐसा एक, आपको कोई जकड़ नहीं रहा है। आप हर चीज़ जो आप अभी फील करते हैं आप तब भी फील करेंगे, लेकिन आपका नज़रिया बदल जाएगा। वो कहने की कोशिश कर रही है। Until it's not a big deal anymore. In fact, once you fully integrated enlightenment, it's not like you go around talking about it to people or that you go, I'm enlightened, because once again, that's like the ego. It's just one of those things where you've developed so much harmony within your total mind, body, spirit complex that isn't such a big deal. You can even accept the reality of a living, breathing oneness rather than mocking it or feeling like this is something that is unattainable and that you are on some constant treadmill with a carrot in front of you trying to reach enlightenment and yet rejecting it at the same time. And so if you're off of the treadmill and if you've settled into your being, what that really means is you have presence. And lo and behold, guess what's a part of presence? Enlightenment. An enlightened being doesn't judge negative emotional states or the fact that they experience them. They don't freak out if they get angry or if they have to cry. And because they are gentle and honor their emotional body, they allow it to move through whatever it needs to move through, and that ends up taking on an accelerated rate to not only their own awakening, but to their own integration. And because they're able to integrate and move through their emotional body with such ease and navigation, enlightenment and spiritual bypassing oftentimes get confused for one another. However, they only get confused for one another when somebody doesn't have a strong level of discernment. Here is how you know if you're dealing with spiritual bypassing or if you're actually dealing with enlightenment. With spiritual bypassing, there is always an expense, whereas with enlightenment, there is no expense.
And what I mean by that is a being who is in spiritual bypassing is going to have something favored at the cost of something else, meaning that they मुझे are तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बंदे की वीडियो देख क्यों रहा हूँ। ख़त्म होने वाली है, इसने अब तक बताया नहीं कि हाउ टू रिकग्नाइज एन एनलाइटेंड बीइंग। बता दे। क्या 3 सिंग होते, 2 सिंग होते? एक तो ऐसे लग रहा है कि अंकल ने बाल उगा लिए, लेकिन और आवाज़ औरत वाली है इसकी। कोई बात नहीं। are in a sort of rejection of the ego, meaning that they're in some sort of denial of an aspect within their being. So with spiritual bypassing, there's always this subtly venomous tone that has something at the expense of something else. And with enlightenment, there is no expense. So there is no ego versus divinity, humanity अरे इसके versus हाथ पे तो ओम spirit. बना हुआ है There's दोस्तों, simply ओम। no देखो देखो aversion. ओम बना हुआ है। ये हट रहे हैं सबटाइटल। देखो ओम बना है यहाँ पे ओम बना। देखना ध्यान से, अभी ये हटा देता हूँ मैं सबटाइटल। And so because there's no aversion, you can still honor the fact that the ego has a detrimental aspect and side to it and not be repulsed by it. So even if we're talking about negative emotions, there's no दोस्तों मैं एक बात बोलूँ, ऐसे बात करना इन चीज़ों के ऊपर, टॉपिक्स पे, इन एनलाइटनमेंट, है ना, मतलब मुक्ति, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ईजी है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको बात करने वाले, लेकिन इन कॉन्सेप्ट पे सही में चलना। ये टैटू वैटू भी बहुत लोग बना लेते हैं। ये टैटू वैटू भी कोई चीज़ हुई है दिखाने का कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। टैटू बना लिया ओम का, लो भाई। भाई इन सब चीज़ों से मुक्ति ही तो जीवन है। अंगूठियाँ पहन रही है, पत्थर पहन रही है, पता नहीं कौन सी भक्ति कर रही है भाई। ये एनलाइटनमेंट के बारे में हमको बता रही है ये, जो खुद मटेरियलिस्टिक है। व्हाटएवर। repulsion to them. We're just being able to honor and discern the fact that there are higher or lower, there's less dense and there's lighter levels of being within us, and that doesn't mean that this is something that we're talking about from a state of rejection. If anything, enlightenment just comes from an ability to reclaim and to integrate and to be at peace with our humanity. You're going to see this time and time again. You're going to go through a maze of spiritual bypassing or enlightenment, because I promise you, this is such a strong theme during spiritual awakening, where you're going to be questioning, wait, am I in a state of spiritual bypassing, or am I in a state of spiritual awakening deeper and deeper into enlightenment? And so your number one guide, your number one marker through this is going to be, do I have aversion? Am I coming from a place of denial? Do I have subtle venom regarding this emotional state, regarding my own being, regarding whatever it is that we are in judgment or repression तो बोल of? रही That's है going to be your आप इस एनलाइटनमेंट की जो कि अल्टीमेट जर्नी है, आप इस जो स्टेट है अल्टीमेट जर्नी की, आप इसके किस लेवल पे हो, ये पता करने के लिए आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कुछ, कि मैं कहाँ पर हूँ, कि मैं में कितना ईगो है, जो भी आप में जो भी चीज़ें है वो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी थोड़ा शांत बैठ करके। और आपको पता करना पड़ेगा कि आप खुद ही पता कर सकते, कोई और बता नहीं सकता आपको। ये तो भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स बता रही है, लेकिन ये पॉइंट किसी काम की नहीं है। अगर आपको सही में मुक्ति चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आसान नहीं है ये बात। बहुत डिज़ायर्स को मारना पड़ेगा सबसे पहले। तो कोई डिज़ायर नहीं चलेगी। पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, इन सब चीज़ों से जब तक मुक्त नहीं होते ना, सोचना भी मत कि मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए। तो पहले मुक्ति का जो फर्स्ट स्टेप है वही है, सब कुछ छोड़ना होगा। your best marker for whether you or a being is spiritual bypassing. Whereas with enlightenment, your knowing just doesn't all of a sudden disappear. What happens is it thoroughly integrates. So one is a dismembered, discombobulated state, and the other is a remembered and united state. The number one sign of enlightenment, once you have integrated this state of oneness, is that you can't really remember that much anymore. It's a good type of not remembering, though. It's not one of those disease states that are very severe and very real. It's a state of... दोस्ती एक बार ये कहना चाहती है, एक बार आप एनलाइटनमेंट आपको अगर अचीव हो गई तो आप ये सब भूल जाएंगे कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ। और ये पॉजिटिव होगा, ये कोई वैसे नेगेटिव चीज़ नहीं कि अरे मैं तो भूल गया। मतलब आप गजनी नहीं बन जाएंगे, आप अच्छे के लिए भूलेंगे। आपकी लाइफ में पास्ट नहीं रहेगा, इसका मतलब है एक तरीके से पास्ट हट जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट रहेगा ना, फ्यूचर रहेगा। आप ये भी नहीं सोचोगे कि अरे मैं तो पायलट बन गया रहता तो अभी मैं प्लेन में घूम रहा होता है, ये मैं कहाँ वगैरह कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ। तो ये सब नहीं आप सोचेंगे, आप सिर्फ हवा की तरह बहेंगे। आप ये सोचेंगे नहीं कि साला यहाँ पेड़ है, यहाँ पौधा है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ माकड़ है। आप सिर्फ बहेंगे लाइक वाटर, एकदम मतलब मुक्त हो जाएंगे यार आप। मज़ा आ जाएगा आपको।
ये स्ट्रेस वैस ये सब क्या होता है, ये सब तो होगा ही नहीं, आप सोचेंगे भी नहीं कि क्या है चीज़, आप सिर्फ बहते चले जाएंगे, समझ रहे हो? being so present that you're not really able to remember that much of the past, or it becomes a little fuzzy. You're not able to retrieve things like मतलब ये बोल रहे कि आप इसलिए रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे पास्ट को क्योंकि आप इतना प्रेजेंट में हो जाएंगे, इतना प्रेजेंट में हो जाएंगे कि क्या ज़रूरत ही क्या है आपको पास्ट के बारे में जानने की, जब आप अभी यहाँ पे बैठे हैं, ये लैपटॉप पे मैं देख रहा हूँ, ख़त्म बात, दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता मेरे लिए, सिर्फ ये है और मैं हूँ और ये मेरा शेकर है जिसमें माइक लगा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए एनलाइटनमेंट के लिए, जो कि काफ़ी मुश्किल है ऐसा होना। no, you did that, I did that, and that was exact. And so it's this state of being where you retrieve information as you need it, but you don't necessarily carry it with you the whole time. Things come in when needed, revelations come in when they're needed, but we're not able to have like a lot of exact details and information and data about the past. And that truthfully just comes with the territory. It's something that we get used to along the journey of being able to retrieve things when they're तो absolutely इस औरत की नॉलेज से और बातों से ऐसा लग रहा है कि इसने काफ़ी टाइम से काफ़ी कोशिश की है एनलाइटनमेंट की, लेकिन ये प्रोसेस कोई, मैंने आपको बताया, आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बंदी सारे सैक्रिफाइसेस नहीं कर पाई है, इसलिए अभी भी ये मतलब हाथ में अंगूठी ये सब पहना हुआ इसने, तो जो भी है, लेकिन बंदी कोशिश कर रही है, तो मैं दुआ करता हूँ कि इसको भी एनलाइटनमेंट मिले, ये भी मुक्त हो सके इन सब चीज़ों से और सिर्फ बातें ना बोल सके, काम कर सके उस प्रकार का जिस प्रकार का ये बोलना चाह रही है इस वीडियो में। necessary, but most of the time not having that knowing until it's absolutely needed, and then also just not really remembering a lot about the past, which once again looks an awful lot like spiritual अगर तुम अंग्रेज है तो तुम्हारा बाल काला कैसे है, डाई किया है या फिर नेचुरली है, ये सब ये भी मैं जानना चाहूँगा। bypassing, because what's one of the things that comes with a lot of spiritual bypassing, we're holding on to a lot of trauma when we're in the state of spiritual bypassing. Yeah, really. And yet trauma has so much lack of memory and not ability to retrieve information within that. And yet on the polar end of the spectrum, we have enlightenment, which also is able to not retrieve or remember that much. However, it's come from deep, deep healing and enormous amount of inner work. So one of these states comes from extreme pain and denial, and the other state comes from extreme acceptance. And yet sometimes the features of these two can, to the untrained eye only, mirror or resemble one another. The reason why we lose our memory in enlightenment is because we're in the constant and eternal now ये moment. गलत बता रही थोड़ा बहुत, ये बोल रही कि हम एनलाइटनमेंट में हमारी मेमोरी इसलिए खोते हैं, हम लोग कोई मेमोरी खोते नहीं दोस्तों, हमें उस मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये रियलिटी है, क्योंकि क्या ज़रूरत उस मेमोरी की, अभी हमारी जो पास्ट लाइफ है वो हमारा फ्यूचर किसी भी तरीके से कुछ नहीं इफेक्ट कर सकती। हम आज हमारा दिन पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, हम चाहे तो जाके छत पे बैठ सकते हैं, क्या पास से कुछ है इसका संबंध, आप कुछ भी कर सकते हो यार, छत पे जाके बैठ, दूसरे गांव में जाके बैठ सकते हो, बिना ट्रेन के टिकट के घूम सकते हो, पकड़े जाके पिट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में है सब कुछ। तो आपका प्रेजेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पास्ट गया तेल लेने, फ्यूचर गया तेल लेने। And when we're in the eternal now moment, that's guided by synchronicity, and that plane of existence doesn't always have the same access to memory that's available when we're in the third dimensional concept of memory. So it's not that we don't have memory anymore, it just functions completely different. I hope this has helped you own both your humanity and your divinity. Make sure to सब्सक्राइब करने भी बोल रही है, channel. कैसी एनलाइटनमेंट है रे ये वाली बंदी, जंगलों में रह रही है, कोशिश फुल कर रही है दोस्तों, लेकिन नहीं हो पा रहा इससे। अभी दोस्तों कमेंट्स पढ़ेंगे कि लोग इसको देखने वाले वो कितने प्रभावित हुए हैं इससे। 87 के व्यूज़ आए हैं, कुछ 700 कमेंट्स आए हैं। इन अ नटशेल, एनलाइटनमेंट इज़ नॉट समथिंग टू बी अचीव्ड, रादर इट इज़ समथिंग टू बी रियलाइज, एंड इट इज़ रियलाइज व्हेन वन इज़ रेडी। ये बंदे के हिसाब से एनलाइटनमेंट कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक रियलाइजेशन है कि हाँ, जब हम तैयार हो जाते हैं उसके लिए कि हाँ अब यही है, तो अपने आप हम उसको रियलाइज़ कर लेते हैं, कोई जर्नी नहीं है। जो कि बहुत सही बात बोली इस बात बंदे ने, माइकल, ये पता सबको होता है ये सब चीज़ें, लेकिन इनमें से एक भी एनलाइटनमेंट नहीं है, सबके सब टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई लव दैट यू आर हियर ऑन अर्थ एट दिस टाइम, थैंक यू। ये बंदी इसको बहुत दिल से थैंक यू बोल रही थी औरत को, कि मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि तू इस दुनिया में पैदा हुई। अबे ऐसी बातें बोलने से तू एनलाइटनमेंट नहीं हो जाएगी, जो भी एक क्रिश्चियन, ये कोई अंग्रेज बंदी है,
तो ये बंदी सुन के खुश हो गई, लेकिन फिर भी वही ज़िंदगी जी रही है 100% दिल की बोल, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत कमेंट कर चुका हूँ कि ए महान ओशो, आपने मेरी ज़िंदगी की आंखें खोल दी। लेकिन दोस्तों, आंखें जब तक नहीं खुलती जब तक आप खुद खुद एफर्ट नहीं डालते। यस यस यस, इसने बहुत गहरी बात कर दी है इस आरजे ने। इसने बोला है, किसी ने लिखा है, इसने बोला है कि समवन रोड बिफोर एनलाइटमेंट, मतलब एनलाइटमेंट के पहले चॉप वुड, लकड़ी काटना, पानी कैरी करना। फिर आफ्टर एनलाइटमेंट भी उसने सेम चीज़ लिखी है, मतलब बिफोर एनलाइटमेंट और आफ्टर एनलाइटमेंट आपका कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि अरे भाई मैं तो मतलब आदमी था, भगवान बन गया, उड़ने लगा। नहीं, आप फिर से आपकी वही ज़िंदगी रहेगी, बस नज़रिया बदल जाएगा। समझ रहे हो? टेंशन, डिप्रेशन, ये सब जो चीज़ें होती है, ईगो, गुस्सा, ये सब चीज़ें आपके आसपास भी नहीं हो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारा दिमाग का खेल है। जब दिमाग ही नहीं है आपका दिमाग तो रहेगा लेकिन प्रेजेंट में रहेगा। बाकी पास्ट फ्यूचर ये सब देखो, पास्ट और फ्यूचर में रहता है सारा गुस्सा, दर्द, दुख, सब कुछ। प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है। जब आप ये शेकर को पकड़ रहे हैं, जैसे कि मैं एक रबर को पकड़ रहा हूँ अगर मैं एनलाइटेंड हूँ तो मैं सिर्फ इस रबर को ही पकड़ा हुआ हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार अगर पेन होता तो इस रबर से कैसे मिटाता। तो ये बकचोदी नहीं, ओनली प्रेजेंट। देखते हैं और थोड़े कमेंट देखते हैं। दिस चैनल हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस गिफ्ट टू माई सोल। इसके अरे अरे भाई भाई कितनी गहरी बातें कर रही है जो भी है। बोल रही है इस चैनल एक तोहफा है मेरे अंतरात्मा के लिए। ये बढ़िया को पता भी नहीं इसने लिखा क्या है, ब्लेसिंग्स टू ऑल। क्यों तू ब्लेसिंग दे रहा है सबको? दिस इज़ क्रेजी। आई वेंट टू न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेंड $800 ओनली टू फाइंड नथिंग इज रॉन्ग विथ माई ब्रेन। अरे यार ये मेगा, ये इंडिया नहीं है बकचोद। देखो दोस्तों, इसकी फ़ोटो भी रही है यहाँ पे, मेगा इंडियन औरत। बोलती है मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, जो कुछ तो लॉजिस्ट का डॉक्टर टाइप का, जो दिमाग का सब देखता है। और बोलता है कितने खर्च किए उसने, $800, मतलब कितने हो गए, 40,000 खर्च किए। और बोलती है मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे दिमाग में कुछ गलती भी है या नहीं। तो बोलती है इस औरत को थैंक यू बोल रही है वो भी। चलो दोस्तों जाने दो, जो भी है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने रिएक्ट कर दिया इस वीडियो पे। अगर आपकी कोई और डिमांड होगी तो कमेंट से बोल सकते हो। धन्यवाद।